কৰ্মবন্দিতাৰ আপুনি চাই আছে DY 365 ডিজিটেল ৱাকফৰ জৰিয়তে মুছলমানক শেষ কৰিব বিচাৰিছে মুছলমানৰ প্ৰতি ইমান হিংসা কিয় মোদী চৰকাৰৰ এই প্ৰশ্ন এটা উত্থাপিত হৈছে ৱাকফ বিলক লৈ লোকসভাত গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু মোদী চৰকাৰলৈ এতিয়া প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৱাকফৰ জৰিয়তে মুছলমানক শেষ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে এই ডাঙৰ অভিযোগ লৈ আহিছে মুছলমানৰ প্ৰতি কিয় ইমান হিংসা মোদী চৰকাৰৰ ৱাকফ বিলক লৈ লোকসভাত গৰজি উঠিল আসাদুদ্দিন ওৱেইচি অসাংবিধানিক আখ্যা দি সদনত ওৱেইচিয়ে ফালিলে ৱাকফ বিলৰ প্ৰতিলিপি মুছলমানৰ পৰা সকলো অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে বিজেপি ৱাকফক লৈ বিজেপিয়ে মিছা কথা বিয়পোৱা বুলি মন্তব্য ওৱেইচিৰ ৱাকফ বিলৰ বিৰোধিতাৰে সদনত যুক্তি দাঙি ধৰিলে ওৱেইচিয়ে ৱাকফৰ জৰিয়তে মুছলমানক শেষ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে ডাঙৰ অভিযোগ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুছলমানৰ প্ৰতি ইমান কিয় হিংসা মোদী চৰকাৰৰ বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে ৱাকফ বিলক লৈ লোকসভাত গৰজি উঠিল আসাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু তাৰ লগতে অসাংবিধানিক আখ্যা দি সদনত আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে ফালিলে ৱাকফ বিলৰ প্ৰতিলিপি মুছলমানৰ পৰা সকলো অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৱাকফক লৈ বিজেপিয়ে মিছা কথা বিয়পোৱা বুলি মন্তব্য আসাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ ৱাকফ বিলৰ বিৰোধিতাৰে সদনত যুক্তি দাঙি ধৰিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইমান কিয় হিংসা বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে মোদী চৰকাৰলৈ ৱাকফ বিলক লৈ লোকসভাত এতিয়া আসাদুদ্দিন ওৱেইচি গৰজি উঠা পৰিলক্ষিত হয় অসাংবিধানিক আখ্যা দি সদনত আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে ফালিলে ৱাকফ বিলৰ প্ৰতিলিপি মুছলমানৰ পৰা সকলো অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আসাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসাংবিধানিক আখ্যা দি সদনৰ ভিতৰতেই এনেদৰে এতিয়া আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে ৱাকফ বিলৰ প্ৰতিলিপি ফালি পেলোৱা সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছে ৱাকফৰ জৰিয়তে মুছলমানক শেষ কৰিব বিচাৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ লৈ আহিছে মুছলমানৰ প্ৰতি মোদী চৰকাৰৰ কিয় ইমান হিংসা আছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে ৱাকফ বিলক লৈ লোকসভাত গৰজি উঠিল আসাদুদ্দিন ওৱেইচি অসাংবিধানিক আখ্যা দি সদনত ওৱেইচিয়ে ফালিলে ৱাকফ বিলৰ প্ৰতিলিপি আৰু ৱাকফ বিলক লৈ বিজেপিয়ে মিছা কথা বিয়পাইছে এনে ধৰণৰ অভিযোগ আসাদুদ্দিন ওৱেইচি ৱাকফ বিলৰ বিৰোধিতাৰে সদনত যুক্তি দাঙি ধৰিলে ওৱেইচি আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় এনে ধৰণৰ এতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত সদনত ৱাকফ বিলৰ প্ৰতিলিপি ফালি পেলাইছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে অসাংবিধানিক বুলি আখ্যা দিছে আৰু তাৰ পিছতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে মোদী চৰকাৰলৈ মুছলমানৰ প্ৰতি কিয় ইমান হিংসা আছে মোদী চৰকাৰৰ মুছলমানৰ কথা কিয় মিছাকৈ বিয়পাই বিজেপি চৰকাৰে এনে ধৰণৰ অভিযোগ বা প্ৰশ্ন তেওঁ উত্থাপিত কৰিছে ৱাকফৰ জৰিয়তে মুছলমানক শেষ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে এই অভিযোগ আসাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ আৰু আপোনালোকক সেই সদনৰ ভিতৰত আচলতে কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল কি কৈছিল তেওঁ শুনাব বিচাৰিছো अजल पोकया का ऑर्बिटर क्या है इट इज ऑर्बिटर वो रेशो डेसेंडेंट आई नहीं है जो आपने कहा है अच्छा सर शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया आर्टिकल 26 चला गया आर्टिकल 14 चला गया 15 चला गया 29 चला गया लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है क्या कह रहे हैं आप इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर सर और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया और आप बनाएंगे क्यों बनाएंगे आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान क्यों होंगे क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए आप वक्फ यूजर को आप कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा कुछ एक्शन ही नहीं लगा क्योंकि वो आपके प्यादे हैं अच्छा जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हम बिल्कुल नहीं ला सकते क्या मजाक है बताइए आप ये डेमोक्रेसी है नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी
वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, वेयर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state work board, central work council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के है, बौद्ध के है और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल, हिंदू एंडोमेंट का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हां, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए, ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर, आप क्लॉज 3(9) पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान, मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर,
इसमें आप देखिए clause 432, the creation of waqf al-Allah shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मैं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लास 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया, उसको 6 महीने कर दिया। नॉन बेलेबल था, आपने बेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू।